1. Incur. बांधना है बर्दाश्त करना डालना दुख झेलना मुसीबत में पड़ना 2. Dubious. गैर मोतबर पेचीदा मशकूक मुश्तबा मुबहम शक की हालत में धुंधला 3. Periodic. काफी अक्सर और बाकायदगी से होना है गर्दिशी नवीती मियादी दूरी वक्फों पर होने वाला 4. Intensive. कामिल अमली शिद्दत से मुताल्लिक शिद्दत का हामिल गहरा ही कामिल शदीद कुन 5. Norm. मियार मिसाली कायदा सानचा 6. Vividly. वजाहत से सफाई से शिद्दत से वाज़े तौर पर शोख रंग के साथ 7. Legislature. मजलिस कानून साज सरकारी तौर पर बाइख्तियार मुंतखब लोगों की मजलिस जो कानून बनाती मनसूख करती और उनमें तरमीम करती है 8. Quorum. अरकान की वो मिकदार जो जिसके लिए ज़रूरी हो हद निसाब 9. Adjourn. मुलतवी करना 10. Brawl. एक शोर और पुरतशद्दुद लड़ाई जिसमें लोगों का एक ग्रुप शामिल होता है आम तौर पर अवामी जगह पर फसाद हाथापाई लड़ाई दंगा फसाद चीख पुकार झगड़ा करना गोल गुपाड़ा करना 11. Constituency. इंतखाबी हल्का 12. Constituencies. इंतखाबी हल्के राय व हिंदगान अबाशिंदे हल्का इंतखाब 13. Inconvenience. तकलीफ जहमत गैर मुतमईन होना नामुनासिब तकलीफ देना जहमत देना आराम में खलल डालना 14. Obstructing. रोड़े अटकाना रुकावट डालना रोकना रास्ता रोकना रुकावट डालना बंद करना मसदूद करना 15. Seldom. बहुत कम कभी कभार शाज 16. Coordination. हम पल्ला हम वजन हम आहंगी 17. Originate. वजूद में लाना मुजा मुख्तरा होना शुरू होना ईजाद करना पैदा करना 18. Terminate. आखिर करना खत्म करना हदबंदी करना इंतहा करना तमाम करना 19. Surpass. ले जाना फायक होना बढ़ जाना आगे निकल जाना सबकत ले जाना बढ़ जाना हद दूसरे की निस्बत बेहतर होना गालिब आना गालिब होना 20. Plead. हुज्जत करना 21. Station. जगह मकाम जाए कयाम ठहरना नस्ब करना मौका ठिकाना अड्डा मुस्तकर पढ़ो मंजिल खिदमत ओहदा दर्जाए हैसियत 22. Scathing. नुकसानदेह ज़रर रसान 23. Indictment. इल्ज़ाम करारदाद जुर्म किसी शख्स के खिलाफ बाज़ाब्ता इल्ज़ाम चालान फर्द जुर्म आयद करना For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. How expensive is democracy? Ahmed Bilal Mehboob. Dawn Editorial. Published December 3, 2022. Contrary to the parliamentary calendar of the legislature, the Punjab Provincial Assembly has been continuously in session for the last 7 months. Although divided into 3 sessions, the 40th, 41st and 42nd, there was only a day's gap between the sessions,
practically making it one long session. Apparently, this costly route of continuing the session and incurring the associated costs has been taken to avoid the governor's exercise of his powers to ask the chief minister to seek a vote of confidence from the assembly where the CM has a razor-thin majority. In a vote of confidence, the burden of proving the majority is on the CM, and the absence, real or engineered, of even a few MPAs may fail the vote of confidence. Although many legal experts believe that the governor can ask the CM to seek a fresh vote of confidence even while the provincial assembly is in session, the assembly is apparently made to stay in session continuously under the dubious impression that the governor can't ask the CM to seek a vote of confidence during an assembly session. This is just one example of how democracy is made to heavily pay for narrow party interests. Earlier, the same assembly had the dubious honor of holding 2 parallel budget sessions at 2 premises, costing almost twice the amount for a session. Democracy is a costly affair because the holding of periodic elections, maintaining elected bodies at the federal and provincial levels, and elected local governments is quite a capital-intensive exercise, but all these expenses are worthwhile. If democratic institutions are elected and run in the true democratic spirit which calls for reasonable standards of integrity and efficiency, the democratic system is certainly a cost-effective proposition with a favorable cost-benefit ratio. But when democratic norms are abused and taken undue advantage of, the system starts to become unaffordable. Irresponsible politics in the country are rendering democracy too costly. Let's take the case of our parliament and provincial assemblies. We have fixed a certain minimum number of days for these houses to meet during a parliamentary year. The National Assembly, the Senate and the provincial assemblies are required to meet for a minimum of 130, 110 and 100 days, respectively. The Constitution allows that a gap of 2 days during the session of a legislature be counted towards the statutory minimum days of sittings. The actual number of sittings therefore are less than the days formally counted, as per the Constitution, and so vividly demonstrated during the 41st session of the Punjab Assembly, which met for just 35 days but accounted for 127 days. 2 other indicators point to the serious abuse of democratic norms. First, an average workday consists of merely 3 hours in most Pakistani legislatures, which, by any standard, is rather low. The Indian Lok Sabha works an average of 6 hours per day, and the British House of Commons around 8 hours. Second, on an average, the National Assembly hardly disposes of 40% of its daily agenda or order of the day. Lack of quorum is increasingly becoming the norm to adjourn the proceedings of the House. Noisy protests and brawls have also become more prevalent. The passing of the budget is a mere formality, and hardly any scrutiny of the most important policy document ever takes place in the legislatures. The allocated budget for the current year, 2022-23, for the National Assembly, the Senate and the provincial assemblies of Punjab, Sindh, KP and Balochistan translates to a daily budget of 47 million rupees, 34 million rupees, 37 million rupees, 29 million rupees, 18 million rupees, and 23 million rupees respectively on the basis of the minimum statutory sitting days. This gives an idea of how much the loss of a day or the non-disposal of the agenda costs the taxpayers. General and by-elections cost around 80 million rupees to 90 million rupees per National Assembly constituency. Despite incurring a huge cost, the 45 PC average voter turnout for the last 8 elections is among the lowest in the world, in which the global average is around 66 PC. Our Constitution places no bar on the number of constituencies where a candidate chooses to contest elections from. Imran Khan, for example, won from 5 National Assembly constituencies during the 2018 general election and vacated all but 1 seat, which meant re-election in 4 constituencies with extra expenditure by the public exchequer. There were others too who also vacated their seats. During the recent by-elections, Imran Khan won from 6 National Assembly constituencies, which means another series of by-elections on the 5 vacated constituencies. Democracy allows people,
political parties and interest groups to protest, but the right to protest is subject to certain conditions such as not inconveniencing the public or obstructing businesses and public services like schooling. Sadly, these restrictions are seldom respected and businesses and public services are adversely hit, costing millions, if not billions, in the process. Maintaining law and order during such protests and long marches costs the taxpayers quite heavily. The federal government's Economic Coordination Committee approved an initial sum of 410 million rupees to deal with Imran Khan's Hakiki Azadi March, which originated from Lahore and terminated in Rawalpindi. The expenses, not disclosed so far, incurred by the Punjab government are in addition to these figures but may even surpass the federal expenses as almost the entire Long March route was in the Punjab province. This article does not plead that democracy is too expensive and should therefore be discontinued. It is more about pleading with the people, political parties and elected representatives to use their democratic liberties and rights more responsibly and to do their duties more efficiently. Their present conduct is weakening the case for democracy in Pakistan. The absence of, on average, around 55 PC voters and around 70 PC of youth from the polling stations is a scathing indictment of the prevailing quality of democracy in Pakistan. Even if we make allowances for this state of affairs on account of military interference in the political process, as recently acknowledged by the previous army chief, the responsibility of politicians and the people remains paramount. The writer is president of the Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. मुकन्निना के पार्लिमानी कैलेंडर के बरक्स पंजाब की सूबाई असेंबली का इजलास गुज़िश्ता 7 माह से मुसलसल जारी है। अगरचे 3 सेशनों में तकसीम किया गया है, 40 41 और 42 सेशन के दरमियान सिर्फ 1 दिन का वक्फा था। अमली तौर पर ये एक तवील सेशन बनाता है। बज़ाहिर इजलास को जारी रखने और इससे वाबस्ता अखराजात बर्दाश्त करने का यह महंगा रास्ता गवर्नर की जानिब से अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से बचने के लिए इख्तियार किया गया है ताकि वो वज़ीर आला से असेंबली से एतिमाद का वोट हासिल करने के लिए कहीं जहां वज़ीर आला को मामूली अक्सरियत हासिल है। एतिमाद के वोट में अक्सरियत साबित करने का बोझ वज़ीर आला पर होता है और चंद MPs की गैर मौजूदगी भी एतिमाद के वोट में नाकाम हो सकती है। अगरचे बहुत से कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि गवर्नर सूबाई असेंबली के इजलास के दौरान भी वज़ीर आला से एतिमाद का नया वोट हासिल करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर असेंबली को इस मशकूक तासुर के तहत मुसलसल इजलास में रहने के लिए मजबूर किया जाता है कि गवर्नर असेंबली के इजलास के दौरान वज़ीर आला से एतिमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकते। यह सिर्फ एक मिसाल है कि किस तरह जमहूरियत को तंग जमाती मुफादात के लिए भारी कीमत अदा करने पर मजबूर किया जाता है। इससे पहले इसी असेंबली को 2 इहाते में 2 मुतवाज़ी बजट सेशन मुनक्किद करने का मशकूक एजाज़ हासिल था, जिसकी कीमत एक सेशन के मुकाबले में तकरीबन दोगुनी थी। जमहूरियत एक महंगा मामला है क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इंतखाबात का इनेकाद वफाकी और सूबाई सतह पर मुंतखब इदारों और मुंतखब बल्दियाती हुकूमतों को बरकरार रखना काफ़ी सरमाए पर मबनी अमल है, लेकिन यह तमाम अखराजात काबिल कदर हैं। अगर जमहूरी इदारों को मुंतखब किया जाता है और हकीकी जमहूरी जज्बे के साथ चलाया जाता है जो सालमियत और कारकर्दगी के माकूल मेयार का मुतालबा करता है, तो जमहूरी निज़ाम यकीनी तौर पर एक लागत और फ़ायदा के तनासुब के साथ एक कम लागत मुअस्सर तजवीज़ है। लेकिन जब जमहूरी अक़दार का गलत इस्तेमाल किया जाता है और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, तो ये निज़ाम नाकाबिल बर्दाश्त होना शुरू हो जाता है। मुल्क में गैर जिम्मेदाराना सियासत जमहूरियत को बहुत महंगा कर रही है। आइए अपनी पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों का मामला लेते हैं। हमने पार्लिमानी साल के दौरान उन ऐवानों के इजलास के लिए कम अज़ कम दिनों की एक मखसूस तादाद मुकर्रर की है। कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलियों का इजलास बिलतरतीब कम अज़ कम 130, 110 और 100 दिन का होना ज़रूरी है। आइन इस बात की इजाज़त देता है कि मुकन्निना के इजलास के दौरान 2 दिन का वक्फा इजलासों के कानूनी कम अज़ कम दिनों में शुमार किया जाए। लिहाजा इजलासों की असल तादाद इन दिनों से भी कम है जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर शुमार किया गया है। आइन के मुताबिक
और उसका वाज़े मुज़ाहरा पंजाब असेंबली के 41वें इजलास के दौरान किया गया, जो सिर्फ 35 दिनों के लिए मुनक्किद हुआ लेकिन 127 दिन तक जारी रहा। दो दीगर इशारे जमहूरी अक़दार के संगीन गलत इस्तेमाल की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले, ज़्यादातर पाकिस्तानी कानून साजों में एक औसत काम का दिन सिर्फ 3 घंटे पर मुश्तमिल होता है, जो किसी भी मेयार के मुताबिक बहुत कम है। हिंदुस्तानी लोकसभा रोजाना औसतन 6 घंटे और बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स तकरीबन 8 घंटे काम करती है। दूसरी बात यह है कि कौमी असेंबली अपने रोजाना के एजेंडे ऑर्डर ऑफ द डे का बमुश्किल 40% हिस्सा ज़ाय करती है। ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने के लिए कोरम का फुकदान तेजी से मामूल बनता जा रहा है। शोर शराबे के मुजाहरे और झगड़े भी ज्यादा आम हो गए हैं। बजट की मंजूरी महज एक रस्मी कार्रवाई है और कानून साजों में कभी भी सबसे अहम पॉलिसी दस्तावेज की शायद ही कोई जांच पड़ताल होती है। कौमी असेंबली, सेनेट और पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान की सूबाई असेंबलियों के लिए रवां साल 2022-23 के लिए मुख्तस बजट कम अज कम कानूनी इजलास के दिनों की बुनियाद पर बिलतरतीब 47 मिलियन रुपए, 34 मिलियन रुपए, 37 मिलियन रुपए, 29 मिलियन रुपए, 18 मिलियन रुपए और 23 मिलियन रुपए का यौमिया बजट है। इससे अंदाजा होता है कि एक दिन का नुकसान एजेंडे को ज़ाय न करने से टैक्स दहिंदगान को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। कौमी असेंबली के हर हल्के में आम और ज़िमनी इंतखाबात पर 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। भारी अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद गुज़िश्ता 8 इंतखाबात में 45% औसत वोटर टर्न आउट दुनिया में सबसे कम है, जिसमें आलमी औसत तकरीबन 66% है। हमारा आइन इन हलकों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं लगाता है जहां से कोई उम्मीदवार इंतखाब लड़ने का इंतखाब करता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने 2018 के आम इंतखाबात के दौरान कौमी असेंबली के 5 हलकों से कामयाबी हासिल की और 1 के सवा तमाम नशिस्तें खाली कर दें, जिसका मतलब यह था कि सरकारी खजाने के इजाफी अखराजात के साथ 4 हलकों में दोबारा इंतखाब हुआ। कुछ और भी थे जिन्होंने अपनी नशिस्तें खाली कर दें। हालिया ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इमरान खान ने कौमी असेंबली के 6 हलकों से कामयाबी हासिल की, जिसका मतलब है कि खाली होने वाले 5 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात का एक और सिलसिला। जमहूरियत लोगों, सियासी जमातों और मुफाद परस्त गिरोहों को एहतजाज करने की इजाज़त देती है, लेकिन एहतजाज का हक कुछ शराइत से मशरूत है, जैसे अवाम को तकलीफ न पहुँचाना, कारोबार और अवामी खदमात जैसे स्कूली तालीम में रुकावट डालना। अफसोस की बात यह है कि उन पाबंदियों का शाज़ व नादिर ही एहतराम किया जाता है और कारोबारी इदारों और अवामी खदमात को बुरी तरह मुतासिर किया जाता है। इस अमल में अरबों नहीं तो लाखों की लागत आती है। इस तरह के मुजाहिरों और लान-उमाश के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने से टैक्स दहिंदगान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वफाकी हुकूमत की इक्तिसादी राबता कमेटी ने इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च से निमटने के लिए इब्तिदाई तौर पर 41 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी, जो लाहौर से शुरू होकर रावलपिंडी में इख्तिताम पजीर हुआ। पंजाब हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले अखराजात अभी तक जाहिर नहीं किए गए, इन अदाद-ओ-शुमार के अलावा हैं, लेकिन ये वफाकी अखराजात से भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि तकरीबन पूरा लान मार्च रूट सूबा पंजाब में था। इस मजमून में ये दलील नहीं दी गई है कि जमहूरियत बहुत महंगी है और इस वजह से उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। ये अवाम, सियासी जमातों और मुंतखब नुमाइंदों से दरख्वास्त करने के बारे में है कि वो अपनी जमहूरी आज़ादियों और हुकूक को ज़्यादा जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और अपने फ़राइज़ को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से अंजाम दें। उनका मौजूदा तर्ज अमल पाकिस्तान में जमहूरियत के मामले को कमज़ोर कर रहा है। पोलिंग स्टेशनों से औसतन 55% वोटर्स और 70% नौजवानों की अदम मौजूदगी पाकिस्तान में जमहूरियत के मौजूदा मेयार की शदीद अक्कासी करती है। यहाँ तक कि अगर हम सियासी अमल में फ़ौजी मुदाखलत की वजह से इस सूरत हाल के लिए अलाउंस देते हैं, जैसा कि हाल ही में साबिक आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है, तो सियासतदानों और अवाम की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। मज़मून निगार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर हैं। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.